अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है, जिसने हमारे दिलों में नूर ईमान पैदा किया। This is mathematics lecture for inter part 2 presented by Harunabad Science Garden. My name is Avais Nasser. This is lecture number 3. My phone number and email ID is mentioned over here. Sorry, this is mentioned over here. The coordination, this is the coordination timing. You can coordinate me for your question and queries. So we can start our topic. This is actually third lecture. So this is third lecture. So for our discussion, today's discussion is about composition of function. So एक function को दूसरे में तहलील किस तरह करना है, ठीक है। तो इस स्टडी को हम लोग पढ़ेंगे. फॉर एग्जांपल f of x is a function and g of x is a function, then we can define another function from which is g of f of x or f of g of x. So briefly we can write. So we can see that if f of x is given function and g of x is given function, then if we want to write f of g of x, f of g of x. So f of x is given over here, g of x is given over here. I want to find f of x over g of. So f of x में हम लोग x की जगह पर g of x रिप्लेस कर देंगे. So फंक्शन के f of x में हम लोग x की जगह पर g of x रिप्लेस करेंगे. So फंक्शन है आपके पास 2x, 2 into x की जगह पर g of x, इसकी वैल्यू आ गई x square 2x square plus 3. This is another function called composition of f of x over g of x. Okay, so this is called f of g of x. So this is the way to find the composition of two functions. We have briefly defined. So if f of x is a function and f of g of x is a function, then g of f of x and f of g of x is the composition of two functions, f of x and g of x. So if function is defined f of x from x to y and g of x is defined from y to z, then f of g of x will be defined from x to z, g of f. So it is defined from x to z. So if this is f of x, this is g of x, then this function is g of f of x. So it is defined from x to z. So there are some examples which is solved for your study. So you can study. So in regarding this, I have regarding this in the exercise, we have first question is of composition of two. The first question of 1.2 is of composition of two functions, f of x and g of x. So we first of all need to find f of g of x can be written as f of g of x. On comparing this f of x and f of g of x, we can see that here he replaced g of x in the place of this x. So in this function, we will replace the value of this value of g of x in the place of this x. So everywhere x is in here in g of x, we will replace the value of g of x. So f of x is x plus 1 square root and g of x is equal to 1 over x square. So at x, we will replace the value of g of x, which is 1 over x square, and this one will be as it is and square root is as it is. Taking LCM on both sides, we will get x square LCM and getting in denominator 1 plus x square root. And because there is x square, so square can be cancelled this square root. So the remaining part is x.
So this is the f of g of x. Here we have find g of f of x. So g of f of x means in function g of x, in g of x, in g of x, we will replace f of x at the value of x. So in g of x, we will replace this whole value in at the place of x. So g of x was 1 over x square. So 1 over x की जगह पर हम लोगों ने फंक्शन की वैल्यू रिप्लेस करनी है जो कि x प्लस 1 का स्क्वायर रूट है, वो हम लोगों ने प्लेस किया और क्योंकि इसका स्क्वायर वैसे ही वो वैसे ही आ गया, सो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रिजल्टिंग टर्म विल बी 1 over 1 प्लस। अब हमें एफ ऑफ एक्स करना है। फंक्शन में आपके पास एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पर फिर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रिप्लेस करनी। फंक्शन था आपके पास एक्स प्लस 1 का स्क्वायर रूट, सो एक्स की जगह पर फिर से आप फंक्शन की वैल्यू रिप्लेस करोगे एक्स प्लस 1 का स्क्वायर रूट, सो फाइनल टर्म विल बी दिस वन। सो इफ यू हैव क्वेश्चन यू कैन कोऑर्डिनेट मी। I have solved question number 4 from question number 1, fourth part for you. So guys, f of x is equal to, given this equation, g of x is given this equation, we need to find f of g of x. So we need to replace g of x in f of x at the place of x. So at each x, we will replace this value. So we have replaced this value and then we have simplified and taking answer. Now in g of f of x, in the value of g of x, in the value of g of x, we replace f of x in the place of this x. So we will get this result. On taking x square common from both the term, we will get this result. So this is the way. Finally, we need to find f of x. f of x में हम लोगों ने f of x की वैल्यू ये है, तो यहाँ पर x की जगह पर हम लोगों ने ये सारी वैल्यू रिप्लेस की, यहाँ पर x की जगह पर ये सारी वैल्यू रिप्लेस की और फिर हम लोगों ने ये रिजल्ट गेट किया। इस रिजल्ट को सिंप्लीफाई करने पर ये हमें फिर से वही f मिल गया। So this is the way of composing two functions. Now we will study about the inverse. Now we'll study about the inverse of a function. So inverse of a function, if f is a function, if y is equal to f of x, then x must be f inverse of y. If y is equal to f of x, अगर कोई y function f of x के equal है, on taking f on this side, we can get this result of x is equal to f inverse of y. This is called inverse function, denoted by f inverse by the function of f denoted by f inverse. So the main thing is, अगर आपका फंक्शन x से y पर है तो इनवर्स के अंदर फंक्शन आपका y से x पर होगा। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है फंक्शन में वो डिपेंडेंट बन जाता है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है फंक्शन का वो इंडिपेंडेंट बन जाता है। दूसरे लफ्जों में हम लोग ये कहेंगे जो डोमेन होती है फंक्शन की वो रेंज बन जाती है और जो रेंज होती है वो अपने आप में डोमेन बन जाती है। सो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सो फंक्शन अगर x से y पर फंक्शन डिफाइन हो रहा है तो फिर y से x पर उसका इनवर्स डिफाइन होगा। ये इस सूरत हाल में फंक्शन की डोमेन बनेगी और फंक्शन के इनवर्स की रेंज बनेगा। ये सेट फंक्शन का रेंज बनेगा और उसके इनवर्स का डोमेन बनेगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन। हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में ये पढ़ा था, if x and y are any real number, function is called the real valued function. We say that every important special relation type is called function. If a and b are two non-empty sets, then f is a relation from a to b such that subset of a cross b. Domain of f is equal to a. First element of two non-pairs are equal, then f is said to be function. हम लोगों ने सेकंड ईयर में भी एक पढ़ी थी कि डोमेन के हर एलिमेंट को मैप होना पड़ेगा कोड डोमेन के अंदर। तो कोड डोमेन के अंदर डोमेन के हर एलिमेंट की इमेज यूनिक होनी चाहिए, मतलब डोमेन का हर एलिमेंट मैप होना चाहिए कोड डोमेन में चंद एलिमेंट से।
और डोमेन के हर एलिमेंट को कोडोमेन में एक ही एलिमेंट पे मैप होना पड़ेगा, उसकी एक ही इमेज बनेगी। जैसे यहाँ पर 1 की इमेज 2 है, 3 की इमेज 4 है, 4 की इमेज 5, और डोमेन के सारे एलिमेंट यूज हो रहे हैं, कोई रह नहीं रहा। सो दिस इज अ फंक्शन। दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। लेकिन ये फंक्शन ए से बी पर तो फंक्शन डिफाइन हो रहा है, लेकिन क्या बी से ए पर भी फंक्शन डिफाइन हो रहा है? नो, बी से ए पर फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा, क्योंकि डेफिनेशन कहती है फंक्शन इज अ रूल दैट असाइन ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन। इस सूरत में इनवर्स में ये डोमेन बन रहा है। अगर ये डोमेन बन रहा है इनवर्स की, तो फिर इसके डोमेन के हर एलिमेंट को मैप होना पड़ेगा, लेकिन ये 8 तो किसी के साथ नहीं मैप हो रहा। इसका मतलब है इनटू फंक्शंस का इनवर्स नहीं करता। ओके, सो वी कैन मूव फर्दर। नेक्स्ट टाइप इज ऑन टू फंक्शन। हम लोगों ने ऑन टू फंक्शन भी पढ़ा था, या सब्जेक्टिव फंक्शन। क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है? ये फंक्शन ए से बी पर तो ऑफ कोर्स एक फंक्शन है। क्या इसका एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा बी से ए पर? एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा इसका? जी नहीं, इसका इनवर्स एग्जिस्ट कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि डेफिनेशन ही नहीं पूरी कर रहा। डेफिनेशन में ये कहते हैं फंक्शन इज अ रूल दैट असाइन ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन इनटू सम यूनिक एलिमेंट इन कोडोमेन। जो डोमेन के तो हर एलिमेंट को कोडोमेन में मैप करे, ये फर्स्ट कंडीशन तो पूरी कर रहा है, डोमेन का हर एलिमेंट मैप हो रहा है। लेकिन दूसरी कंडीशन नहीं पूरी कर रहा, वो ये कि डोमेन के हर एलिमेंट की कोडोमेन में एक ही इमेज होनी चाहिए। लेकिन इस एम की यहाँ पर 2 इमेजेस बन रही है, एक नहीं बन रही। इसका मतलब है इनवर्स की ये प्रॉपर्टी तो होल्ड नहीं कर रहा। इसका मतलब है ऑन टू या सब्जेक्टिव फंक्शन भी नहीं रखता इनवर्स, इनवर्स पॉसिबल नहीं। What about one and injective function? Of course, this is vacant element, so vacant element cannot be acceptable, so F inverse cannot be possible. So, what about one and on to bijective function? What about this function? So, the inverse of this function exists. Inverse of this function exists because it satisfies the definition of the function. Definition was function is a rule that assign each element of domain. Domain के हर element को मैप कर रहा है to some unique element in codomain. हर element की codomain में unique image बन रही है, ऐसा तो नहीं किसी एक से ज्यादा बन रही हो, नहीं। तो ये दोनों कंडीशनों को फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। सो वी स्टडीड दैट ओनली बाइजेक्टिव फंक्शन और वन एंड ऑन टू फंक्शंस हैव फंक्शन इनवर्स, अदर फंक्शंस कैन नॉट बी इनवर्स। सो अगर फंक्शन आपका ऑर्डर पेयर के फॉर्मेट में गिवन है, ये फंक्शन है, तो इसका एफ इनवर्स होगा अपने आप में। एफ इनवर्स में हम लोगों को करना सिर्फ इतना है कि डोमेन को रेंज बना देना है, रेंज को डोमेन बना देना है। सो कैन वी स्टडी? सो यस, सो हमें डोमेन को रेंज बनाना है और रेंज को डोमेन। मान लो ये आपके पास फंक्शन हो, चलो यहीं पे कर लेते हैं। मान लो ये आपके पास फंक्शन है, ये फंक्शन है, तो फिर इसका इनवर्स जो होगा वो अपने आप में एफ इनवर्स लिखेंगे। एफ ऊपर -1 पावर में, ये रिप्रेजेंट करेगा फंक्शन का इनवर्स। और डोमेन को रेंज बनाना है। इस वक्त हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट डोमेन है, सेकंड एलिमेंट रेंज है। डोमेन को रेंज बनाना है, रेंज को डोमेन बनाना है, तो ये बनेगा अपने आप में जी ए व एक्स बी एंड y, c. So this is the f inverse of this function f. So function के इनवर्स में हम लोग डोमेन को रेंज और रेंज को डोमेन बना देंगे. So this is the way to finding the inverse in this. So
हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हम लोगों ने इनवर्स फाइंड करना है। सो क्वेश्चन नंबर 2, मान लो आपके पास फंक्शन है f of x is equal to given, then since f of x is equal to y, then x is equal to f inverse of y। तो अगर ये f of x y के इक्वल है तो we can replace f of x by y, so we have replaced this f of x by y, y is equal to minus x plus 9 whole cube। So removing this power, we can take 1 by 3 power on both sides, so this power will be cancelled by 1 by 3, so 1 by 3 will be here, seen over here, so this 9 can be, this negative x can be shifted there, and this y raised power 1 by 3 can be shifted there, so x is equal to 9 minus y raised power 1 by 3, since x was f inverse of y, f inverse of y, so we can replace x by f inverse of y. So now we don't want to find the f inverse of y, we need to find f inverse of x. So for the sake of this thing, f inverse of x, we need to replace y by x. So in this equation, we will replace y by x. So f inverse of x will be this one. We also need to find the f inverse of minus 1. So on replacing x by minus 1, we will get this result. So this number has 3 roots because it has 3 root। इसके 3 रूट्स होंगे जिसमें से एक रियल होगा और बकाया 2 कॉम्प्लेक्स होंगे। तो हम लोग सिर्फ रियल पार्ट को डिस्कस करेंगे, कॉम्प्लेक्स पार्ट को डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन बुक में हमारा इतने क्वेश्चन है तो वी कैन लीव इट फॉर हियर, हमें यहीं पे इसे छोड़ सकते हैं क्योंकि बुक में यहाँ पर इतना ही सॉल्व है। अब हमें ये स्टेटमेंट प्रूव करनी है, ये स्टेटमेंट फाइनली हमें ये स्टेटमेंट प्रूव करनी है। सो हमें ये स्टेटमेंट बताई गई है, वही सीन है जैसे हम लोगों ने नंबर्स के केस में पढ़ा था कि 2 में आप -2 जमा करोगे तो 0 मिलेगा जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो हम लोगों ने जाना कि 2 नेगेटिव इनवर्स था -2 का और -2 नेगेटिव इनवर्स था 2 का। इसी तरह के लिए हम लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड किए। सो दिस इज द वे। हम लोग इतना जानते हैं जब भी कोई इनवर्स अपने नंबर से या कोई नंबर अपने इनवर्स से ऑपरेट होगा तो रिजल्ट में आइडेंटिटी मिलेगा। यहाँ पर जब भी कोई फंक्शन अपने इनवर्स से ऑपरेट होगा, जब भी कोई फंक्शन अपने इनवर्स से कंपोज होगा तो रिजल्ट में आपको ओनली इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिलेगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं। जब भी कोई फंक्शन अपने इनवर्स से ऑपरेट होगा तो रिजल्ट में सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिलेगा। वी नीड टू प्रूव दिस, हमें ये प्रूव करना है। दिस अगर x ये है, अभी हम लोगों ने देखा कि अगर फंक्शन था आपके पास ये वाला, ये फंक्शन था और इसके लिहाज से हम लोगों ने ये इसका इनवर्स फाइंड किया। सो सिंस फंक्शन इज गिवन, फंक्शन इनवर्स इज गिवन, वी नीड टू फाइंड f of f इनवर्स ऑफ। हम लोगों को फंक्शन f of x में x की जगह पर f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू रिप्लेस करनी। हमें यहाँ पर x की जगह पर ये सारी वैल्यू रिप्लेस करनी, ये सारी वैल्यू। तो हमने क्या किया, इस x की जगह पर ये सारी वैल्यू रिप्लेस कर दी और उसके बाद इसे सॉल्व करके वैल्यूएट किए। सो यहाँ पर f इनवर्स ऑफ f of x में हम लोगों ने क्या किया, अब हम लोगों को f इनवर्स में f of x की वैल्यू रिप्लेस करनी है। अब हमें करना यह है कि f इनवर्स के अंदर x की जगह पर हम लोगों को ये सारी वैल्यू रिप्लेस करनी है। तो हम लोगों ने वो रिप्लेस किया है इधर और उसके बाद इसे सिंप्लीफाई किया और सेटिस्फाइड करवाया कि ये वाकई ही x। इसी क्वेश्चन का मैंने एक और पार्ट किया, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 3, हम लोगों को करना यह है कि विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स। हम लोगों को इस फंक्शन, इन फंक्शंस के इनवर्स मालूम किए बगैर, इन फंक्शंस के इनवर्स मालूम किए बगैर हम लोगों को एफ इन फंक्शंस इनवर्सेस का डोमेन भी बतानी है और रेंज भी बतानी है। तो कोई मुश्किल नहीं, हम जानते हैं जो फंक्शन की डोमेन होगी वो इसकी रेंज होगी, जो उसकी डोमेन होगी वो इसकी रेंज होगी और जो इसकी रेंज होगी वो इस फंक्शन की डोमेन होगी। हमें सिर्फ फंक्शन की डोमेन और रेंज चाहिए,
जो फंक्शन की डोमेन वो इनवर्स की रेंज, जो फंक्शन की रेंज वो इनवर्स की डोमेन। सो ये एक रूट फंक्शन है, रूट फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसका मतलब रेंज 0 से इंफिनिटी तक रहेगी, 0 से इंफिनिटी तक रहेगी। और डोमेन, इसकी डोमेन के बारे में बात कर लेते हैं। डोमेन वो तमाम एलिमेंट्स डोमेन होंगे जहां पर ये वैल्यू अनडिफाइंड ना दे। अगर हम x0 रखें तो स्क्वायर रूट 2 अनडिफाइंड नहीं है। अगर -1 रखें तो -1 + 2 + 1 + 1 का स्क्वायर रूट भी 1, ये भी डिफाइंड नंबर है। -2 रखें, -2 + 2 0, 0 भी डिफाइंड नंबर है। -3 रखते हैं तो -3 + 2 -1 बनेगा, और -1 का स्क्वायर रूट अपने आप में इयोटा पैदा कर देगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। इसका मतलब -2 से पीछे नहीं जा सकते, तो हमारे पास इंटरवल बनेंगे की रेंज -2 टू इंफिनिटी, और इसकी डोमेन, ये गलत लिखा हुआ है ना, ये चीज गलत लिखी हुई है। अच्छा, ये उन्होंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, इनवर्स के बारे में लिखा हुआ है। हम लोग फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये फंक्शन की डोमेन बनेगी और ये फंक्शन की रेंज बनेगी। सो इसी के लिहाज से फिर ये अगर फंक्शन की डोमेन है तो ये इनवर्स की रेंज होगी, और ये अगर फंक्शन की रेंज है तो ये इनवर्स की डोमेन होगी। ये उन्होंने बात सही लिखी है इस लिहाज से। फर्दर दिस विल बी, इसमें अगर x की जगह -3 रिप्लेस कर दें, 1/0 इज इंफिनिटी देगा। सो ये फंक्शन तमाम रियल नंबर्स पर वैल्यू अवेलेबल है, सिर्फ 3 के अलावा। 3 पर वैल्यू अवेलेबल नहीं है। और ये तो सिर्फ और सिर्फ 3 पर इसकी वैल्यू अवेलेबल नहीं। डोमेन में, इसके अंदर डोमेन के अंदर सिर्फ 3 शामिल नहीं है, और फंक्शन की डोमेन के अंदर सिर्फ 3 शामिल नहीं है, बकाया सारे रियल नंबर होंगे। व्हाट अबाउट इट्स रेंज? अगर मैं x को -3 रखूं, सॉरी -3 तो रख नहीं सकते क्योंकि डोमेन में शामिल नहीं है। सो अगर मैं -4 रखूं, -4 + 1 -1 मिलेगा। -1000 रखूं तो फिर भी माइनस मिलेगा। इसका मतलब है कि मुझे सारे नंबर मिल सकते हैं। क्या मुझे कभी 0 मिलेगा? क्या मुझे कभी 0 मिलेगा? जी नहीं, मुझे कभी भी 0 नहीं मिलेगा। 0 मुझे सिर्फ उसी वक्त मिल सकता है जब नीचे इन्फिनिटी आ जाए, और इन्फिनिटी को हम लोगों ने डोमेन में शामिल नहीं करना। इसका मतलब मुझे 0 नहीं मिलेगा। इसका मतलब है इस फंक्शन की रेंज तमाम के तमाम रियल नंबर होंगे एक्सेप्ट 0, 0 शामिल नहीं। So you can move for this and this. This is your homework. I have solved some questions. So this question and last, third question. So if function is x minus 1 over x minus 4, इसकी डोमेन में सिर्फ 4 शामिल नहीं है। x must not equal to 4, इसकी डोमेन में सिर्फ 4 शामिल नहीं है, डोमेन में 4 शामिल नहीं है, तो ये फंक्शन की रेंज बनेगी, और रेंज में 1 शामिल नहीं है तो ये फंक्शन की डोमेन बनेगी। सो आपका जो होमवर्क है वो आपका ये होमवर्क है कि आपने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। कंप्लीट कंप्लीट एक्सरसाइज तो इस लेक्चर में जो जो मैंने क्वेश्चन किए हैं उनको आप छोड़ सकते हो। जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं वो सारे के सारे आपका होमवर्क है। सो यू नीड टू submit your assignment as one PDF file, not in WhatsApp group at my inbox. So best of luck for your assignment and quizzes. Best of luck, best wishes. Allah Hafiz.